Hello everyone and welcome back to Elite Link Online. So we're going to continue with the topic direct and inverse variation. Right? In the last video, we were already on exercise 10C. So we're going to continue with those sums. The last sum that we had actually done was the 9th sum. लेकिन हमने एक sum बीच में skip कर दिया था and now it is time to do that sum and that is your question number 8 everyone. जो question है कुछ इस प्रकार 4 men or 6 women earn rupees 360 in one day. Question है find how much will a man earn in one day? A woman earn in one day? And the third one, 6 men and 4 women earn in one day. So that is the question everyone. Let's start. The sum actually is very easy. कुछ ज़्यादा ही आसान. Okay, now see, we are going to split this sum into two parts. In fact, करना भी है because there are 3 different parts. So let's start with the first one. Question पूछा है how much will a man earn in one day? अब हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है पता है आपको? सिर्फ men का देखेंगे. 4 men या तो 6 women. It is either or. दोनों नहीं है. या तो हम 4 आदमियों को काम पे बुला सकते हैं एंड अगर वो नहीं करना है सपोज वी कोई रीजन से द मेन आर नॉट अवेलेबल देन इफ वी वांट टू डू गेट द वर्क डन बाय women then we will have to call 6 women in order to complete that work and we are ultimately going to give both of them the same payment. 4 अगर आदमी काम पे आएंगे तो भी हम उनको देंगे 360 रुपीज इन वन डे एंड अगर 6 औरतें काम पे आएंगी तो भी हम देने वाले 360 रुपीज पर डे डिपेंडिंग ऑन द वर्क दे कैन डू. राइट? सो एवरीवन, अगर हम सिर्फ अभी हम यही सोचते हैं लेट्स अज्यूम कि वी आर ओनली कॉलिंग द मेन. ऑलराइट, मे बी women आर नॉट अवेलेबल ऑन दैट डे तो हमने फोन किया पूछा अच्छा ओके मेन आर अवेलेबल चलो हम उनसे काम करवा लेंगे. सो वी आर कॉलिंग 4 men and the 4 men who are going to work they will earn 360 rupees in one day. We have to find how much one man will earn. So here number of men and दूसरा earnings. In rupees. Number of men पहले दिया था 4 और उनका earnings है 360 rupees. हम बोल रहे हैं अभी कि अभी only one man is going to work तो what will be his earnings? How much will a man earn in one day? So अगर एक ही आदमी काम पे है, let's find how much he will earn. अब तुमको दिमाग लगाना है इन दोनों के बीच में कौन सा वेरिएशन होगा. तुम सोचो अगर नंबर ऑफ मैन को हम ज्यादा बुलाएं
4 के बदले 40 लोगों को बुला ले, तो क्या उनको भी 360 रुपए देंगे क्या? ऑब्वियसली नॉट. इफ यू आर कॉलिंग मोर पीपल यू विल हैव टू पे देम मोर. So if number of men increase, the earnings also will increase for them, and that means they are in direct variation. Since they are in direct variation everyone, we are going to use the rule DD, direct divide. अब हमको ये सब अगर हम ना भी लिखे, because these are a little lengthy sums, इसमें तीन पार्ट्स अलग अलग करने हैं, तो अब आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. x1 upon y1 equal to x2 upon y2. If you want you may write it, or you can directly write down the answers. 4 upon 360 equals to 1 upon x. And now everyone, अब हम करने वाले कुछ इस तरीके से, x को ले लेंगे यहाँ पर ऊपर और 4 को भेज देंगे उसके जगह पे नीचे, और 360 को हम सीधा ऊपर ही भेज देंगे, फ्लाइट पकड़वा के भेज देंगे उसको. सो नाउ एवरीवन, x यहाँ पे आ गया है, 1 into 360 हो जाएगा, एंड x के जगह पे नीचे आपने बुलाया है 4 को, करेक्ट. x यहाँ पर 4 नीचे. सो वी क्लियरली नो द आंसर इज 90 रुपीज. या मैं ऐसा लिख देता हूं, x is 90 rupees. Therefore, one man can earn 90 rupees in one day. Okay everyone? तो हमको समझा कि ये इसका पेमेंट है. एक आदमी को एक दिन के काम का हमको 90 रुपीज पे करना पड़ता है. Similarly, we are going to do the sum number 2, yeah, second part of the same sum, because now we are going to find out how much a woman can earn in one day. So we very well know, अगर हम men को नहीं बुलाते काम पे, तो हम को बुलाना पड़ता women को, लेकिन फिर हमको 6 women को बुलाना पड़ता, तो ये काम पूरा हो सकता था. So we will call 6 women. They are going to earn 360 rupees. So here, now for the second part, the two quantities are number of women and earnings. In rupees, of course. So number of women, if it is 6, the payment that we will give them is 360 rupees. We will find out if only one woman works, what will be her payment. अब इस सम में already आप x use कर चुके हो, so to avoid using it one more time, we are going to write only y. Now moving on to the calculation part. So once again देखो सेम ही लॉजिक है ना बेटा, यहाँ पर men हो के women हो, बात वही हो गया, हम लोगों को ही काम पे बुला रहे हैं. So they are also going to be in direct variation. If the number of women increase, if more women are told to work, you have to give them more money. So if this number of women increases, money also increases. Therefore they are in direct variation. So we have x1 upon y1 equal to x2 upon y2. Same type of calculation. Y ऊपर 6 वहाँ नीचे and 360 ऊपर. So that's 1 into 360 upon 6. Therefore, one woman can earn 60 rupees in one day. Second final answer, first final answer. Okay everyone, and now the third part of the sum. चलो ये सब calculations करके हमको समझा कि किसको कितना पैसा देना पड़ता है. If you call one man to work for one day, you have to pay him 90 rupees. If you are calling one woman to work for one day, you have to pay her 60 rupees. So now we have got an idea of third part. Find how much will 6 men
and 4 women earn in one day. अब देखो ये वर्ड को ध्यान से, and बोला है, and यानी अब सच में कुछ बहुत बड़ा काम आया है कि हमको ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो जो भी अवेलेबल है उनको बुला रहे हैं हम। हमने फोन किया, पता चला कि 6 लोग काम करने के लिए तैयार है, 6 आदमी काम करने के लिए तैयार है, सो वी आर कॉलिंग ऑल द 6 men। और लोग कम पड़ रहे हैं, तो हमने और फोन किया, तो वी कम टू नो कि 4 women आर आल्सो विलिंग टू वर्क, सो वी आर कॉलिंग देम आल्सो। हम टोटल 10 लोगों को काम पे बुला रहे हैं, बट आउट ऑफ देम 6 आर men and 4 आर women, तो इनका टोटल कितना पेमेंट बनेगा इन वन डे एवरीवन। So therefore, for 6 men and 4 women, total earnings, अब ये हम कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली, मतलब इसमें हम कोई टेबल मेथड यूज करके वेरिएशन पता करके सब नहीं करेंगे, बिकॉज नाउ इट्स ऑब्वियस। अगर 6 आदमी काम पे आने वाले, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट 1 man has to be paid 90 rupees, और तुमने 6 आदमियों को काम पे बुलाया है, तो you will have to pay 90 into 6, 90 rupees एक जन को, ऐसे 6 जन को हमको 6 आदमियों को पैसा देना पड़ेगा। So 90 into 6 is the payment for the men, and women के लिए we are paying 60 rupees to 1 woman for one day, so that multiplied by 4, because 4 औरतें काम पे आई है, इसीलिए वो हिसाब से उनका पेमेंट बनेगा। Now 9 6 is 54 and 1 0, so that's 540. 6 4 is 24 and 1 0. So totally 6 men and 4 women का total earnings in one day will be equal to, add this, 780 rupees every month. This is the full and final answer of the third part of the sum. Okay everyone, chalo, pause the video and make sure that you copy this very nicely, perfectly. Pause the video and chapo. Okay everyone, so moving on to sum number 10 now. So now moving on to the next sum. Question is something like this: 50 laborers can dig a pond in 16 days. How many laborers will be required to dig another pond double in size? And that too in 20 days.
ओके, नॉट एन इजी सम। सुनने में बहुत इजी लगेगा बट नॉट एन इजी सम एवरीवन। यहां लिखा है 50 लेबरर्स कैन डिग अ पॉन्ड इन 16 डेज। ओके, 50 जन को काम पे बुलाया, एक पॉन्ड डिग करना है, मिट्टी निकाल निकाल के एक पॉन्ड बनाना है, राइट। तो ये काम उनसे हो सकता है 16 दिन में, 16 डेज में दे आर एबल टू कंप्लीट दैट वर्क। क्वेश्चन इज हाउ मेनी लेबरर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू डिग अनदर पॉन्ड double in its size and that too in 20 days. The problem is, अगर समझो 50 लेबरर्स दिए हुए हैं, यानी नंबर ऑफ लेबरर्स एक क्वांटिटी हुई, नंबर ऑफ डेज दूसरी क्वांटिटी हुई, तो अगर यहां पर हमको लेबरर्स मालूम है और डेज मालूम है, सेकेंड सिचुएशन में भी डेज मालूम है और पूछ रहे हैं नंबर ऑफ लेबरर्स, तो हमको लग रहा है ये तो नॉर्मल सम है, लेकिन नॉर्मल सम होता तब जब दोनों को काम सेम दिया गया होता। अब दोनों को काम अलग अलग दिया है। पहले इन लोगों को बोला था एक सिंगल पॉन्ड डिग करने के लिए, लेकिन उसके बाद में जब दूसरे सिचुएशन में जब इनको बुलाया गया है, यू हैव टू एक्चुअली डिग अ पॉन्ड व्हिच इज डबल इन साइज। यानी आप सोचो कि पहले केस के मुकाबले में इन द सेकेंड केस द वर्क हैज डबल्ड, उनको डबल काम करना पड़ेगा ना। पहले इतने साइज का पॉन्ड डिग कर रहे थे, अब उसके डबल साइज का पॉन्ड डिग कर रहे हैं, तो आपका काम ही सीधा बढ़ के डबल हो गया है, राइट। सो देयरफॉर दिस सम इज नॉट अ वेरी क्लियर कट सम। इसमें सिर्फ दो क्वांटिटीज नहीं है, हियर इन फैक्ट देयर आर थ्री डिफरेंट क्वांटिटीज, एंड व्हाट वी विल डू, वी डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व थ्री क्वांटिटीज एट द सेम टाइम। सो व्हाट वी विल डू, जो हमने सीखा है हम तो वही करेंगे, वी विल सॉल्व ओनली टू क्वांटिटीज एट वन टाइम एंड देन वी विल सी हाउ टू गेट द फाइनल आंसर। और उसके लिए सबसे पहले we will have to start by saying let the original size of the pond be x। अभी हमको यूनिट्स वगैरह नहीं लिखना है क्या, ठीक है, x उसका साइज x होना चाहिए वैसा। तो ये हमारा बेसिकली काम हो गया। ओके, नाउ आई विल मेक टू क्वांटिटीज का कॉलम्स एंड दैट इज size of the pond and number of laborers। ओके, अब देखना बच्चा लोग, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले पॉन्ड का साइज था x, मैंने लिखा ही है ना, लेट द ओरिजिनल साइज ऑफ द पॉन्ड बी x, और वो काम करने के लिए आपने कितने लोगों को बुलाया था, द आंसर इज 50। क्लियर एवरीवन। अब तुम ये सोचो कि अगर तुमको उतने ही दिनों में, एज यू क्लियरली सी 16 डेज में उन्होंने वो काम खत्म कर दिया था, बाय द वे वही 50 लोग ने 16 दिन में एक पॉन्ड तुमको डिग करके दे दिया था। अब समझो तुम्हारे पास टाइम उतना ही हो, अभी भी तुम्हारे पास 16 डेज ही हो, काम तो उतने में खत्म करना ही करना है। तो अब नाउ सपोज इफ यू वांट टू कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज ओनली एंड यू वांट टू dig a new pond of double the size, तो मैंने साइज को डबल कर दिया, x becomes 2x, 2 means multiply by 2 means double हो गया। and now we will find out कि what will be the number of laborers required। clear everyone। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन मार्क रहेगा जिसका आंसर तुमको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ओके, so we don't need to worry about that, you can write down some other variable here, just not to mix it with x everyone। तो हम यहाँ पर कुछ और ही वेरिएबल यूज कर देते हैं, मे बी यू कैन यूज y ऑल्सो, इट्स टोटली फाइन, कुछ अलग यूज करना होगा। नाउ यू कैन थिंक अबाउट द वेरिएशन बिटवीन देम, साइज ऑफ द पॉन्ड एंड नंबर ऑफ लेबरर्स, करेक्ट। तो साइज ऑफ द पॉन्ड यानी काम हो गया, अगर तुमको ज्यादा काम करवाना है वो सोचो, अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो व्हाट विल हैपन टू द नंबर ऑफ लेबरर्स रिक्वायर्ड। सो साइज ऑफ द पॉन्ड अगर बढ़ेगा मींस तुम्हारा काम बढ़ रहा है, सो इफ द वर्क इंक्रीजेस विल यू नॉट रिक्वायर मोर नंबर ऑफ लेबरर्स। So if this increases, obviously number of laborers also increase, and that means they are in direct variation. So I will say since they are in direct variation, हम अपना वही रूल यूज करते हैं dd। dd means direct divide, so you will divide these two, x1 upon y1 equal to x2 upon y2, so the answer is
x upon 50 equal to y, oh sorry, x upon 50 equal to 2x upon y. And now everyone, आपको मालूम है कि हमें क्या चाहिए? We want to find out the y, number of laborers. Okay, so now we have done this calculation before. y यहां आ जाना चाहिए, x उसके जगह पे नीचे आ जाएगा. So y on the left, x on the right. Next, 50 will be directly transferred on the right side. So we have 50 into 2x. But the best part is x and x will cancel out. The answer of y is 50 into 2, that is 100. So अब हमारा रास्ता क्लियर हो चुका है. Now we can easily find out what is actually required. अब देखिए, अब आप इनका क्वेश्चन बराबर पढ़िए. आप ये समझ लीजिए बराबर से कि हमने ओरिजिनल इंफॉर्मेशन से पहले 50 लोगों को काम पे लगाया था, जिन्होंने 16 दिन में हमको एक पॉन्ड बना के दे दिया. अब हमको उनसे डबल साइज का पॉन्ड बनवाना था, तो मैंने पता लगा लिया है. वी रिक्वायर 100 लेबरर्स. चेक, 100 इज द नंबर ऑफ लेबरर्स. नंबर ऑफ लेबरर्स वाज y. तो ये 100 लेबरर्स हमको चाहिए रहेंगे अगर हमको डबल साइज का पॉन्ड बनवाना है, पर 16 दिन में. That is important, in 16 days only. But now they are asking you, how many laborers will be required to dig another pond double in size in 20 days? So now we can find this number of laborers, क्योंकि अब हमारे पास दोनों variables, दोनों quantities का relation आ चुका है. So now you can use the next two quantities, number of laborers and number of days. Number of laborers पहले लेंगे हम लोग 100. अब देखो, आप ध्यान रखना, ये 100 क्यों लिया है, बराबर सोचना इधर में. चलो 50 क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज 50 लेबरर्स जो थे वो सिंगल साइज का पॉन्ड बना के देते थे. हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है. हम श्योर है कि हमको डबल साइज वाला पॉन्ड ही चाहिए. तो हमने पता लगा लिया है कि डबल साइज का पॉन्ड बनाने के लिए 100 जन लगते हैं. So number of laborers required to dig a double size pond is 100, and that they were able to do in 16 days only. हाँ, काम तो 16 दिन में हो रहा था. Now they are asking you, अगर सेम काम 20 दिन में करवाना है आराम से, तो so what should be the requirement here? अब यहाँ पर ऑलरेडी इसी सम में x भी यूज हो गया और y भी यूज हो गया. So you cannot write x over here. You have to use some other variable. You may use z, you may use a, कुछ भी चलेगा. And now I will say, कौन सा वेरिएशन है इन लोग में, आओ जरा देख लेते हैं. Now, अगर लोग ज्यादा होंगे, if number of laborers are increased, बहुत सारे लोगों को बुला लिया काम पे, तो आप सोचो काम कितने दिनों में खत्म होगा? ज्यादा दिन लगेंगे कि कम दिन लगेंगे? Obviously कम दिन लगेंगे. If the number of laborers increase, number of days decrease, so they are in inverse variation. ओके एवरीवन, सो वी स्टार्ट. इनवर्स वेरिएशन होता है तो हमको पता है क्या करना है. डायरेक्ट में किया डिवाइड, चेक, तुमने अपॉन किया, डिवाइड किया. तो इनवर्स में करेंगे मल्टीप्लाई x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2. ट्वेंटी यहां हो रहा है, इंटू वहां लेफ्ट साइड पे हो जाएगा पिंटू. अरे बोले तो डिवाइड, मल्टीप्लाई का हो तो डिवाइड हो जाएगा. So we have 20 ones are, we have 25s are. The answer of A is 80, which means the number of laborers required to dig a pond of double size, एंड वो भी 20 दिनों में अगर काम करना है, so the number of laborers in that case required is only 80. 16 दिन में काम करना था तो 100 लोग लगते हैं, पर नहीं, हमको आराम से करना है. 20 दिन है हमारे पास, तो कम आदमियों को बुलाओ, पैसा बचाओ. ओके, then the answer is 80 everyone. Alright, चलो pause the video and छापो.
Moving on to the next sum. Okay, now the next sum, everyone, is a very important sum. क्वेश्चन नंबर इज 11 और इस पे मैं बना देता हूं खोपड़िया बाबू। बहुत ही डेंजर सम है रे बाबा। एवरीवन वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, ध्यान देना है, खास डबल अलर्ट होके देखना ये सम, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी, क्वेश्चन इज इफ 12 men or 18 women can complete a piece of work in 7 days, in how many days? Can 4 men and 8 women complete the same work? Okay everyone, that is your question. ये क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं एवरीवन। Okay, if 12 men or 18 women can complete a piece of work in 7 days. Okay, अब ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो 12 आदमी काम करेंगे तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा 7 ही दिन में, और अगर जैसा हमने अभी प्रीवियस सम में, इसके नहीं बट इसके पहले वाले सम में, व्हेन वी अंडरस्टूड दैट कि इफ ड्यू टू सम रीजन मेन आर नॉट अवेलेबल देन वी मे कॉल वुमेन, बट इन दैट केस उसी काम को करने के लिए हमको 18 वुमेन को बुलाना पड़ेगा। यहाँ पे और है, और मींस आइदर और, या ये, तो या तो 12 men can be called to complete the work in 7 days or you can call 18 women to complete the work in 7 days. Right everyone? So that is the meaning of this statement. अब आगे पूछा ये है, find out in how many days 4 men and 8 women complete the same work. तो number of days तो पूछा है, पर 4 men and 8 women को बुलाने का बात हो रहा है, करेक्ट? तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना मामला, राइट? बिकॉज अब तक हमको, इसके पहले इनफैक्ट जो हमने सम भी किया ना, उसमें अब तक हमको एडवांटेज ये था कि हम इनको सेपरेट रखते थे कि या तो सिर्फ मेन को बुलाओ और या तो सिर्फ वुमेन को बुलाओ, तो कैलकुलेशंस बिकम इजी। नाउ वी आर कॉलिंग बोथ ऑफ देम बिकॉज कभी कभी जरूरत तो नहीं कि जितने आदमी चाहिए उतने के उतने काम पे आ जाएंगे, सो वी माइट नीड टू कॉल सम मेन and if the men are not sufficient we have to call women, right? So then we have to work with whatever labor force is available, जितने लोग हैं हमको तो काम करवाना है, right? So what we have found is कि 4 आदमी और 8 औरतें अवेलेबल है ये काम करने के लिए, तो फिर उनको कितने दिन लगेंगे to complete that same work is what we have to find everyone. Clear? Now see that is not, it's not very easy, क्योंकि अगर कंपैरिजन सिर्फ एक ही टाइप के बारे में होता ना, जैसे कि सपोज मैं ऐसा मान के चलता हूं, देखो, इफ द कंपैरिजन वुड हैव बीन लाइक दिस,
नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ डेज। तो हमारे लिए ये बहुत आसान है, ये तो बहुत इजी हो गया। नंबर ऑफ मैन कितने लगते हैं ये काम कंप्लीट करने के लिए? 12। कितने दिन लगते हैं कंप्लीट करने को? 7 days। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमें पूछा है कितने दिन लगेंगे, पर काम पे नंबर ऑफ मैन ही नहीं है, काम पे नंबर ऑफ मेन एंड विमेन दोनों है। सो हियर यू कैनॉट राइट एनी वैल्यू बिकॉज वी जस्ट डोंट हैव नंबर ऑफ मेन ओनली। और आप ये भी नहीं बोलना कि सर है ना 4 आदमी है तो उधर लिख दो, नहीं, only 4 men are not doing the work, right? 4 men and along with them 8 women are also doing the work। यहाँ पे आप वो वैल्यू लिखोगे जितने लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में 12 लोग काम कर रहे थे, ये काम नहीं कर रहे थे बिकॉज या तो की बात थी, आप या तो आदमियों को बुलाओ या तो औरतों को बुलाओ। We call 12 men suppose, so now 12 men are working, so they are doing the work in 7 days। Now how many people will work, that you have to find out, right? So problem is कि यहाँ पर ये भी नहीं मालूम है। Okay, now what I am going to do is everyone ध्यान से सुनना, हम कैसे भी करके ये वैल्यू पहले ढूंढेंगे बिकॉज मुझे मालूम है कि अगर ये वैल्यू मिला ना तो ये तो मिल ही जाएगा, ये तो एकदम नॉर्मल रेगुलर सम के जैसा हो गया। पर उसके लिए बस ये वैल्यू मिलना चाहिए कि कितने आदमी काम कर सकते हैं। नाउ दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द सिचुएशन इज। रियल में तो 4 आदमी और 8 औरतें काम कर रही है, बट वी कैन व्हाट वी कैन डू इज एवरीवन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, यानी रियल सिचुएशन तो ये है कि आदमी और औरतें मिलकर ही काम कर रहे हैं, पर हम ऐसा मान के चलते हैं, हम एटलीस्ट ऑन पेपर वी कैन कैलकुलेट कि अगर समझो ये 8 औरतें काम पे ना आती तो उनके बदले कितने आदमियों की जरूरत पड़ती, एंड देन ये 4 आदमी और जितना काम 8 औरतें कर सकती है उतने ही आदमियों को हम एक्स्ट्रा बुला लेंगे, सो दैट टोटली विल गिव यू द नंबर ऑफ मेन व्हिच आर एक्चुअली वर्किंग, राइट, व्हिच वुड बी एक्चुअली वर्किंग, दे आर नॉट एक्चुअली वर्किंग। जो काम करते अगर हम औरतों के बदले आदमियों को बुलाते तो, एंड देन वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू जिसके बेसिस पे आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, नाउ हाउ कैन यू डू दैट? अब आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि 8 औरतों को निकाल के आदमियों को बुला लोगे, मतलब ऑन पेपर ये कैसे होगा वो समझ तो नहीं आ रहा। That is exactly what the sum is about. So now everyone, I'll show you what the logic is. We have to actually find out the relation between the work of one man and work of one woman. ये देखिए, 12 men या तो 18 women can complete a piece of work, right, in 7 days. यानी दोनों को, there are 2 groups. Suppose there are 2 groups. एक ग्रुप है 12 आदमियों का, उनको एक काम दिया। दूसरे ग्रुप में है 18 औरतें, उनको भी वही काम दिया है। और हमने देखा दोनों ग्रुप्स कैन एक्चुअली डू दिस वर्क, दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 days। यानी डेज तो दोनों को बराबर लगे हैं, करेक्ट, काम भी दोनों को बराबर दिया हुआ है, विच मीन्स के 12 आदमी जितना काम करते हैं it is exactly equal to the work done by 18 women. So now everyone, I will write down in terms of work done. "12 men." Now understand this sign. ये नहीं है, ये है तुम्हारा equal to, ये है इक्विवेलेंट टू। हम ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि मेन आर इक्वल टू वुमेन, करेक्ट, मैथमेटिकली इक्वल नहीं बोल सकते, करेक्ट एवरीवन, बट वी आर सेइंग इक्विवेलेंट टू, यानी इनका काम इज इक्विवेलेंट टू इनका काम, ये बात होगी। मैंने ऊपर लिखा भी है इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, और ये सब हम कर रहे हैं जस्ट टू फाइंड वैल्यूज ऑन अ पेपर, राइट, के 12 आदमी जितना काम कर सकते हैं उतना इक्विवेलेंट काम कितनी औरतें कर सकती है? द आंसर इज 18 women. सो नाउ एवरीवन, हम क्या करने वाले ध्यान से देखना, ये 12 को मैं वहां जाके डिवाइड कर दूंगा तो यहां पे 1 ही बचेगा, बिकॉज आप देख सकते हो, आई विल शो यू द कैलकुलेशन हियर, आई विल डिवाइड 12 हियर। यू माइट बी थिंकिंग अरे ऐसा कैसे हो गया अचानक, देख लो आप, अगर आप 12 को यहां लाओगे तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, 12 1s are 12 ही तो होगा, राइट। ओके एवरीवन, सो now here we have 1 man equal to 18 upon 12 women, which when you calculate equivalent to, I'm sorry not equal to, equivalent to बोलना चाहिए,
So when you calculate, you can cancel them by 6. 6 3s are 6 2s are. So काम करने के हिसाब से one man can actually do the work equivalent to 3/2 women. ओके एवरीवन, एक आदमी 3/2 यानी अगर आप रफली अपने माइंड में कैलकुलेट करो ना, इट्स 1.5. 1.5 मींस 1.5. करेक्ट? यानी एक आदमी 1.5 औरत के जितना काम कर सकता है, इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द वर्क डन बाय देम. ऐसा क्लियर एवरीवन? सो now finally we will say therefore 4 men and 8 women. ये देखो, अब जितने लोगों को हमने बुलाया था, हमने 4 आदमियों और साथ साथ 8 औरतों को बुलाया था. We had called 4 men and 8 women to come for work. So now I am going to find कि टोटल ये जो 12 लोग काम कर रहे थे, जैसा हमने सोचा, ये हमने सिर्फ पेपर पे करने का सोचा है कि हम औरतों को नहीं बुलाएंगे और उनके जगह पे आदमियों को बुला लेंगे, या उल्टा हम शायद आदमियों को ना बुलाए और औरतों को बुला लेंगे काम पे, जस्ट टू कन्वर्ट देम इनटू वन टाइप. सो नाउ एवरीवन, बिकॉज वन मैन इज केपेबल ऑफ डूइंग द वर्क ऑफ 3/2 ऑफ अ वुमेन, सो यहां पर हमारे पास 4 आदमी है, 4 मेन. सो इफ वन मैन इज इक्विवेलेंट टू 3/2 women, then 4 men will be equivalent to 4 into 3/2. अब मैंने जैसे यहां पे into 3/2 कर दिया, ये देखो, ये 3/2 को जैसे ही वहां मल्टीप्लाई कर दिया, so now the type has been converted. अब हमको मिलेगा the work which can be done by women. ये 4 आदमियों को अगर हम ना बुलाते तो कितनी और औरतों को बुलाना पड़ता, वो आपको मिल जाएगा. So this much यहां पर लिख देते हैं, women and 8 more women. Clear everyone? So now अगर दोनों भी women ही है, तो you can directly combine them. First we need to just solve this. So that's 2 3s are 6 and है तो प्लस कर दो 8 women, which clearly tells us के 4 आदमी और अगर 8 औरतें एक साथ में काम कर रही है, उनके जगह पे it is equivalent to 6 plus 8, that is 14 women. So you can directly call 14 women then. ये तो सिर्फ ऑन पेपर की बात है कि अगर 4 आदमी नहीं मिल रहे तो ठीक है, 6 औरतों को और बुला लो, बिकॉज 4 आदमी के जितना काम 6 औरतें कर देगी, तो 6 औरतों को और बुला लो. 6 plus 8 total is 14 women everyone. Okay? अब now finally we have got our track, क्योंकि अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं. Now we can definitely compare. याद रखना, now we can make the comparison between number of women and number of days. The reason is because पहले, अब मैन को तो देखना ही नहीं है, हाँ, आदमियों को लात मार दे, हटाओ चलो. 18 women were working originally and they were able to complete the work in 7 days. अब देखना, in how many days 4 men and 8 women can complete the work. पर हमें मालूम है 4 men and 8 women actually can do the work equivalent to 14 women. तो हम यहाँ पर number of women directly लिख सकते हैं 14, जबकि हकीकत में 14 women कभी काम पे आए ही नहीं है. 8 women and 4 men had come to do the work. Please understand this everyone. This is not a very direct sum. ठीक है, एकदम सीधा straight forward sum नहीं है. Okay? तो this is only being done on paper, right? Only to actually convert it into the table form so that we get the answer for number of days. And now everyone, I can write down the number of days as x. कि अगर 18 women है तो 7 दिन में काम खत्म होता है, तो उसके बदले अगर 14 women होती तो कितने दिन में काम खत्म होता? First let me find that. So now I will say, since they are in inverse variation. Now why are they in inverse variation? You can definitely think over it. You very well know, if number of women will increase, automatically the number of days will decrease. कम दिन में जल्दी काम खत्म हो ही जाएगा ना, अगर ज्यादा औरतों को काम पे बुला लेंगे तो.
So since they are in inverse variation, as we know, DD means direct divide, inverse multiply, x1 into y1 equal to x2 into y2. So now this is the calculation. 14 जो यहाँ मल्टीप्लाई होता है वहाँ डिवाइड हो जाएगा. 7 1s are 7 2s are 2 1s are 2 9s are. The answer of x is 9. ओके, यानी हमको पता चल गया नंबर ऑफ डेज 9 लगेंगे. जो मैं लिखूंगा अभी कि therefore किसको 9 दिन लगने वाले हैं? 14 विमेन को 9 डेज लगने वाले हैं. Therefore 14 women can complete the given work in 9 days, but since यानी क्योंकि 4 men and 8 women, 4 men and 8 women are equivalent to 14 women. तो 14 women actually काम कर ही नहीं रही थी. As I told you, that is only a value on paper. So in reality, the number of people working were 4 men and 8 women. लेकिन याद रखना उनका काम और इनका काम इक्वली हो रहा था. तो अगर इतने लोग भी काम करते तो भी काम 9 डेज में ही पूरा हो जाता, क्योंकि 14 women को तो 9 डेज लग रहे हैं, is what we calculated. So finally we will say आंसर में therefore 4 men and 8 women can complete the given work in 9 days. That is the full and final answer, everyone. Okay, mind you, this concept is going to be very important even for the next sum that we are going to do. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कौन सा कॉन्सेप्ट? ये वाला कॉन्सेप्ट. ये और ये, सॉरी, पहले तो ये वाला कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू वर्क डन हमको पता लगाना चाहिए द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ विमेन जो इक्वल काम करके आपको दे सकते हैं. जैसे हमने यहां ढूंढा कि एक आदमी वो काम कर सकता है 3/2 टाइम्स ऑफ अ विमेन का, यानी इतनी औरतों का काम एक आदमी कर सकता है. नाउ दिस रिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन इन दिस सम, जिसके बेसिस पे यू कैन फाइंड अ टेबल लाइक दिस, वरना आप ये टेबल तक कभी पहुंचोगे नहीं. करेक्ट? सो इससे बिकॉज वी नो द इंटर कन्वर्जन, मैन और वुमेन को एडजस्ट करने के लिए, नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वुमेन को ऑन पेपर एडजस्ट करने के लिए वी शुड नो व्हाट इज द इक्विवेलेंस बिटवीन देम. इसको इक्विवेलेंस बोलेंगे कि एक आदमी कितना काम कर पाता है, कितने औरतों के जितना काम कर पाता है, या उल्टा भी चलेगा. यू कैन डू इट द अदर वे अराउंड आल्सो, कि एक औरत कितने आदमियों जितना काम कर सकती है. दैट आल्सो कुड हैव बीन डन, वो भी हम कर सकते हैं. एंड अकॉर्डिंगली हम सब में वो यूज करके देन वी कैन सॉल्व, एंड देन वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इनटू अ सिंगल टाइप, दैट इज आइदर ओनली नंबर ऑफ मेन या ओनली नंबर ऑफ वुमेन, व्हिच विल बिकम कन्वीनियंट टू सॉल्व. ये करते ही हमारा ये टेबल मेथड काम में आ जाता है, द नॉर्मल मेथड दैट वी यूज इन वेरिएशन, एवरीवन. करेक्ट? तो ये मेथड तक पहुंचने के लिए दिस एंड दिस पार्ट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सम दैट वी डू फ्रॉम हियर ऑन एज वेल. राइट? इसी के जैसा हम एक और सम करने वाले इन द नेक्स्ट वीडियो, एवरीवन, which is from your exercise 10C only. It is the last classwork sum that we are going to do from this, and as I told you, this sum is going to be very important to understand that sum as well. Clear? For now, you will pause the video once I move out from the frame, and you will copy down this very properly. I hope that you have understood this really well. I would suggest, अगर नहीं समझा है, you watch the video 2 times, 3 times, or maybe 5 times. But you will understand this part. ये part की जरूरत पड़े, आप इसे 2 बार देखिए. Understand this with a very cool mind, very calm mind, and as soon as you complete this, try to solve this sum on your own once again. ये बहुत जरूरी है. इस सम के लिए I would definitely recommend this, कि जैसे ही ये खत्म हो जाए आपका देखकर, once you are done, वीडियो बंद कर दीजिए, maybe take a break,
Yes, that is very important because after the break you will realize कि सम खुद से solve हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है. And if in case you are going wrong, you will also understand where you are going wrong. Right, everyone? Okay. So on this note, I'll take your leave. That's all for this video session. I'll catch you in the next video session where we will complete your exercise 10C and then we will start with the exercise 10D, of course. Alright. On this note, everyone, I'll take your leave. We'll catch up very soon. Until we meet next again, please take good care of yourself. Bye.